ஒரு வசனம் வாசிக்கிற லூக்கா 7வது அதிகாரம். एक वचन पढ़ेंगे लूक उसका 7वां अध्याय முதல் 3 வசனமும் வாசிக்கிறோம். पहला 3 वचन उस पर से पढ़ेंगे. लूक उसका 7वां अध्याय पहला 3 वचन. दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष मत லூக்கா 7. लूक उसका 7वां अध्याय जब वह लोगों में से सारी बातें कह चुका तो कफरनहूम में आया. वहां किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था बीमारी से मरने पर था. उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर. இந்த வாசிக்கப்பட்ட வார்த்தையில इस पढ़े हुए वचन के अंदर கப்பர்நகூம் அப்படிங்கிற ஒரு ஊர்ல இந்த மாதிரி நடந்திருக்கிறது. कफरनहूम नाम कर एक गांव में ये बातें हुई है. கப்பர்நகூம்ங்கிறது ஒரு பெரிய பட்டணம். कफरनहूम एक बहुत बड़ा गांव, एक शहर है. அதுல நிறைய அரசாங்கத்துல வேலை பார்க்குற வேலைக்காரங்க பெரிய பெரிய ஆட்கள்லாம் இருக்காங்க. और उस पर जो गवर्नमेंट पे, उस समय की गवर्नमेंट पे काम करने वाले लोग वहां पर रहते थे. அங்க ஒரு அதிபதியினுடைய ஒரு அதிகாரியினுடைய வேலைக்காரன் வியாதியா இருக்கிறார். और वहां पर एक अधिकारी, जो वहां का जो अधिकारी था, उसका एक नौकर घर पे बीमार था. ஆனா அந்த அதிகாரி ஒரு காரியத்தை குறித்து கேள்விப்பட்டிருக்கிறார். और उस अधिकारी ने किसी बात की चर्चा सुनी है. அது என்ன அப்படின்னா, वो बातें क्या है? அவன் இயேசுவை குறித்து கேள்விப்பட்ட போது, उसने यीशु के बारे में कुछ तो सुना है. இப்ப இந்த கப்பர்நகூம்ல இருக்கிற அதிகாரிக்கு இயேசுவை பற்றி யாரோ சொல்லியிருக்காங்க. यीशु के बारे में कफरनहूम में रहने वाले इस अधिकारी को किसी ने बताया. சோமலனுடன் நிறைய பேர் போய் பார்த்திருப்பாங்க. और बीमार जब लोग रहते थे तो बहुत सारे लोग उसे देखने के लिए जाते हैं. ஒருவேளை டாக்டர் எல்லாம் பார்த்திருப்பாங்க. இப்ப டாக்டரால முடியல. और एक समय पर डॉक्टर सब देखने गए होंगे, लेकिन अभी डॉक्टर भी कुछ मदद नहीं कर पाया. ஆனா அந்த அதிகாரிக்கு இந்த வேலைக்காரனை எப்படியாவது சுகமாக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை. और उस अधिकारी को एक इच्छा है कि मेरे नौकर चंगा होना चाहिए. அதுதான் அவருடைய ஒரு ஆசை. और वो उसकी इच्छा है. அதுல பிரயாசப்பட்ட மாதிரி தெரியுது. और उसके लिए वो अपना मेहनत भी लगा रहा है कि उसको चंगा कैसे ना कैसे मिल जाए. அங்க பக்கத்துல நிக்கிற ஒரு சொல்லுகிறார். तब पास में खड़े रहने वाले किसी ने बताया, ஆனா இந்த ஆளை இயேசுநாதர்கிட்ட கொண்டு போனா சுகமாயிரும். इस व्यक्ति को यीशु के पास लेके जाओ, चंगा हो जाएगा. ஆனா இயேசுநாதர் இங்க இல்ல, எங்கேயோ தள்ளி இருக்கிறார். लेकिन यीशु तो यहाँ पर नहीं है, कहीं और गांव में है. ஆனா அவன் அந்த இயேசுவை பற்றி இன்னும் நிறைய கேட்டிருக்கான். और यीशु के बारे में बहुत सारी बातों के बारे में सुना. இயேசு எப்படிப்பட்டவர்? यीशु किस प्रकार का है? அவர் சர்வ வல்லமுள்ள ஆண்டவர். वो सर्वशक्तिमान खुदा. அவர் ஜனங்களுக்கு ஆறுதலாக பேசுகிறார். और लोगों के लिए तसल्ली की बातें देता है. குஷ்டரோகிகள் எல்லாம் சுகமாக்குறார். कोढ़ के बीमार को चंगा करता है. செத்து போனவங்க எல்லாம் உயிரோடு எழுப்பிறார். और मरे हुओं को जिलाता है. அதனால நீங்க கண்டிப்பா இந்த ஆளை இயேசுநாதர்கிட்ட கொண்டு போனீங்கன்னா சுகமாயிரும். और वही वह व्यक्ति को तो यीशु के पास ले जाओगे तो चंगे किए जाओगे. ஆனா இப்போ இந்த ஆளை தூக்கிக்கிட்டு அங்க போக முடியாது. अब ये व्यक्ति को उठाकर नहीं ले जा सकता. வசதி இல்ல, ஆள் இல்ல. क्योंकि उसको उतना जो मेहनत के लिए उतना पैसे भी नहीं है. ஆனா கண்டிப்பா சுகம் வேணும்ங்க ஒரு ஆசை அந்த அதிகாரிக்கு. लेकिन उसके मन में एक इच्छा है कि मेरा नौकर चंगा होना चाहिए. உடனே அவர் தன்னுடைய வேலைக்கார ஒரு ஆளை கூப்பிட்டு, वो तुरंत अपने नौकर में से किसी को बुलाकर, யாரை கூப்பிடுறாரு? किसको बुलाया? இந்த சபையில ஒரு ஆளை. वो कलीसिया के कोई मुख्य व्यक्ति को, चर्च के मुख्य व्यक्ति को बुलाया. சொல்றாரு, ஐயா இயேசுநாதர் உங்க சபைக்கு வருவார்ல எப்பமாது? यीशु मसीह आपके कलीसिया में कभी कभी आता है. தயவு செய்து நீங்க கொஞ்சம் எனக்காக கொஞ்சம் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்க. आप थोड़ा मेरे लिए उनसे विनती कीजिए. எங்க வேலைக்காரனுக்கு சுகம் இல்ல, मेरा नौकर बीमार है. அதனால நீங்க போய் சொன்னா கண்டிப்பா நடந்துரும். अगर आप कहेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ हो जाएगा. அப்படி அந்த ஆள்கிட்ட சொல்லிவிடுதான். और वैसे उसने उससे कह दिया. ஆனா இந்த ஆட்கள் போய் இயேசுநாதர் சொன்னாங்க, ये व्यक्ति जाकर यीशु से कहने लगे, யாரு? இந்த அதிகாரியுடைய வேலைக்காரர். ये अधिकारी का नौकर. ஒரு வேலைக்காரன் சுகம் இல்லாம இருக்கான், இன்னும் மற்ற வேலைக்காரன். और एक अधिकारी चंगा नहीं है, दूसरे नौकर से उसने कहा. ஆனா இவன் என்ன சொன்னா, நீங்க போய் இயேசுநாதர்கிட்ட சொல்லி என் வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வாங்க,
இவனுக்கு சுகமாகணும். और आप जाकर उसे यीशु के पास कहकर यीशु को बुलाकर लाओ, ये यीशु आएगा तो इसको चंगा करेगा। ஆனா அந்த போனவங்க போய் இயேசுநாட்டு சொல்றாங்க, और ये जो गए वो लोगों ने यीशु से जाकर कहा, எங்க ஊர்ல ஒரு அதிகாரி இருக்காரு, यीशु के पास जाकर कहा कि हमारे गांव में एक अधिकारी है, அவர் நம்ம கிறிஸ்தவங்களை ரொம்ப நேசிக்கிறார், वो हमारे मसीह के लोगों को बहुत प्रेम करता है, ஆனா அவர் கிறிஸ்டியன் இல்ல, लेकिन वो मसीह का नहीं है। ஆனா நமக்கு ரொம்ப சர்ச் எல்லாம் கட்டி கொடுத்திருக்காரு, लेकिन कलीसिया के लोगों को कलीसिया बांधने में उसने मदद की है நிறைய நமக்கு ஹெல்ப் और பண்ணிருக்காரு. हमें बहुत मदद किया है। அதனால அந்த ஆளுக்கு வேலைக்காரனுக்கு சுகம் இல்ல, और इसलिए उसके नौकर को चंगा नहीं है, அதனால நீங்க கொஞ்சம் அவனுக்கு உதவி செய்யுங்க. आप जरूर उसे चंगा करने के लिए இத मदद போய் இவங்க कीजिए। சொன்ன உடனே जैसे ही इन बातों को उन्होंने कहा, இப்போ இயேசு கிறிஸ்து வந்து கண்டிப்பா சரி பரவாயில்ல நாம போகணும்னு ஒரு ஆசை வந்துட்டு, और यीशु को भी इच्छा हुआ कि मेरी इच्छा है कि चलो हम जाकर चंगा करेंगे। ஆனா அவன் அங்க இருந்து இயேசு கிறிஸ்து போகணும், और यीशु उसके पास जाना चाहिए। இவன் உடனே என்ன செய்யறான்னா, ये तुरंत क्या करता है? 5வது வசனம் 5वां वचन, 6வது வசனம், 6वां वचन, यीशु उनके साथ गया, पर जब वह घर से दूर न था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु दुख न उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए। இயேசு கிறிஸ்து போறாரு, यीशु उसके पास जा रहा அந்த है, அதிகாரி பாக்காரு, वो अधिकारी को सुनाई पड़ा, இவரு தெய்வம், ये तो खुदा है, இவர் பெரிய ஆளு, ये तो बहुत बड़ा परमेश्वर है, வீட்டுக்குள்ள இவர் வர்றதுக்கு தகுதியே இல்ல, मेरे घर के अंदर, मेरे छत के अंदर आने का मैं योग्य नहीं हूं, அதனால அவர் இங்க வர வேண்டாம், और इसीलिए वो मेरे घर पर ना आए, அங்கே இருக்கட்டும், आप वहीं पर रहिए, ஆனா ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லும், लेकिन केवल एक शब्द कह दीजिए, என் வேலைக்காரன் சுகமாயிருவான், मेरा नौकर चंगा हो இங்க जाएगा। வரவே வேண்டாம், आप मेरे घर के अंदर आने की இயேசு जरूरत नहीं। அங்க இருந்து ஒரு வார்த்தை சொன்னா போதும், यीशु आप वहीं से एक शब्द बोलिए, என் வேலைக்காரன் சுகமாயிருவான். मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। இந்த எஜமான் என்ன நினைக்கிறான், अब ये नौकर क्या, ये जो सूबेदार क्या समझता இயேசு है? கிறிஸ்து சர்வ வல்லமுள்ளவர், यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है, அவன் என் வேலைக்காரன் கிட்ட வரன்னு அவசியமே இல்ல, मेरा नौकर के पास उसके आने की आवश्यकता नहीं। இங்க இருந்து அந்த வேலைக்காரனுக்கு சுகமாகட்டும் அப்படின்னு சொன்ன சுகமாயிரும். अगर यहाँ से वो कहे कि वो नौकर चंगा हो जाए तो मेरा नौकर चंगा हो அந்த जाएगा। வசனம் தேவனுடைய வார்த்தை போய் சுகமாக்கிறது. और प्रभु का वो शब्द सामर्थ का है, वो जाकर चंगा करेगा। உடனே இயேசு சொல்றாரு, ऐसा यीशु ने कहा। எவ்வளவு பெரிய விசுவாசம், कितना बड़ा विश्वास है, நான் சொன்னா நடந்துருமா, मैं कहूंगा तो क्या हो जाएगा? உண்மையிலே நடக்கும், क्या ऐसा सच में हो ஆனா जाएगा? அந்த ஆளுக்கு எப்படி தெரியும், लेकिन उस व्यक्ति को मेरे शब्द पे कैसा भरोसा है? உடனே சொல்றாரு, கண்டிப்பா நீ எப்படி நம்புதியோ அப்படியே நடக்கும். तुरंत यीशु ने कहा, तू जैसा विश्वास करता है वैसे ही तेरा नौकर चंगा होगा। இயேசு சொல்லுகிறார், நீ போப்பா உன் வேலைக்கு சுகமாயிருவான். यीशु ने कहा, तू चला जा, तेरा नौकर चंगा हो गया। இந்த சொன்ன வார்த்தை அங்க அவன் சுகமாயிட்டான். ये जो कहा हुआ शब्द वो वहां पर चंगा भी हो இயேசு गया। அங்க போவே இல்ல, यीशु उसके घर पे गया ही नहीं। வேலைக்காரங்க போய் அந்த எஜமான்கிட்ட சொல்ல போறாங்க, और वो नौकर वहां दूसरे नौकर उस सूबेदार से कहने जा रहे நீங்க हैं, சொன்னதை நாங்க போய் சொன்னோம். तो आपने जो कहा वो बातों को हमने कहा। இயேசு உடனே சொன்னார், போங்க சுகமாயிரும் அப்படின்னாரு. यीशु ने कहा, तुम चले जाओ, वो चंगा हो जाएगा। வாங்க வாங்க அவன் சுகமாயிருவான். आ जाओ, वो चंगा हो जाएगा। அந்த எஜமான் சொன்னார், ஐயோ அந்த இயேசு சொன்னார்ல அப்பமே சுகமாயிட்டான். हाँ, वो सूबेदार ने कहा, यीशु ने जो समय पे वहां पर कहा था ना, उसी समय पे ये यहाँ चंगा हो गया। இது எப்படி ஆச்சரியமான காரியம், ये कैसे आश्चर्य की बात है। தேவன் இன்றைக்கும் அப்படியே செய்கிறார். और यीशु आज भी वैसे ही कार्य करता है। இயேசு சொன்னுகிற வசனத்தை நம்ம வாசிக்கிறது சத்தமா, यीशु के वचन को हमें ऊंचे शब्द से पढ़ना है। அந்த வசனத்தை வாசிக்கும் போது நம்முடைய இருதயத்துல என்ன செய்யுது, அந்த வசனம் பதிவாயிராது, விசுவாசத்தை தரும். और जब ऊंचे शब्द से पढ़ते हैं वो शब्द हमारे मन में विश्वास को दिलाता है। தேவன் தன்னுடைய வார்த்தையை அனுப்பி சுகமாக்கிட்டார். और प्रभु अपने वचन को बेचकर हमें चंगा करता है। அந்த வார்த்தையில பலன் இருக்கு, उस वचन में सामर्थ्य है। அந்த வார்த்தை எப்படி இருக்கு, वो वचन कैसा है? ஒரு ஆளுக்கு சுகம் இல்ல, यदि किसी व्यक्ति को कोई चंगाई नहीं है, யாரோ டாக்டர் சொல்றாரு இந்த மாத்திரையை கொண்டு கொடு, डॉक्टर कहता है ये दवाई जाकर दे दो, அந்த ஆளு மாத்திரையை வாங்கிட்டு போறாரு, वो व्यक्ति दवाई लेकर जाता है। டாக்டர் வரல, डॉक्टर नहीं आया, டாக்டர் சொன்ன மாத்திரை வாங்கிட்டு போறாரு, डॉक्टर ने जो दवाई कहा वो दवाई को लेकर ये उसके पास जा रहा है। சுகமில்லாத ஆளு வாயில போட்டு தண்ணி விட்டாச்சு. और जो व्यक्ति बीमार है उसके मुंह पर डालकर उसको पानी पिला दिया। டாக்டர் ஏன் வரல, डॉक्टर क्यों नहीं आया? அவர் சொல்றாரு இது சின்ன வியாதி தான், और डॉक्टर कहता है ये तो छोटी सी बीमारी है, அனாசின் மாத்திரை போட்டா சுகமாயிரும். छोटा सा एक अनासिन का गोली खा लो चंगा हो जाएगा। சொன்ன உடனே கொடுத்தாங்க சுகமாயிட்டு. और इसने कहा और
उसने खरीद के दिया, वहां पर वो चंगा हो गया। இயேசுகிறிஸ்து சொல்றாரு, यीशु कहता है இவன் மாத்திரையை கொண்டு கொடுக்கான். ये एक जो दवाई को लेकर जाके देता है। இயேசு தான், நான் சொல்லுகிறேன் உன் பிள்ளை சுகமாயிட்டு. यीशु कहता है मैं तेरा बच्चे को चंगा करता हूँ। ஆண்டவர் மாத்திரை கொடுக்கல, வார்த்தையை சொல்லுகிறார். और यीशु ऐसे कोई दवाई को नहीं दिया, लेकिन उसके शब्द को उसने वहां भेज दिया। அந்த வார்த்தையை அவன் நம்புகிறான். वो शब्द को उसने भरोसा किया வேற எஜமான்ட்ட போய் சொல்லுதான். और तुरंत वो वहां पर अपने सूबेदार से जाकर कहा, இயேசு சொன்னார், உங்க வேலைக்காரன் சுகமாயிடுவான். यीशु ने कहा आपका नौकर चंगा हो गया। அது அப்படியே ஆயிட்டு. वो वैसा ही हो चुका। எப்படி ஒரு மாத்திரையை கொடுக்கறானோ அதே போல தான் தேவனுடைய வார்த்தை. और जैसा एक दवाई को दिया जाता है, उससे भी सामर्थ्यवान परमेश्वर का वचन है। எத்தனை பேருக்கு நம்பிக்கை இருக்கு? कितने लोगों को उस वचन पे भरोसा है? அந்த வார்த்தையை நாம் வாசிக்கும் போது, जब उस वचन को हम पढ़ते हैं அந்த வார்த்தையை நான் அப்படியே நம்பி விசுவாசிக்கும் போது, और उस वचन को जब पढ़ के हम भरोसा करते हैं, கர்த்தர் நம்மை சுகமாக்குகிறார். प्रभु हमें चंगा करता है। நிறைய பேர் बहुत सारे लोग முடியல, और कुछ हो नहीं पाए था, தூரமா இருக்காங்க, बहुत दूर है, அவங்களுக்கு டாக்டர் போறதுக்கு பைசாவும் இல்ல, डॉक्टर के पास जाने के लिए कोई पैसे भी नहीं, அவங்களுக்கு ஒரு வழி இல்ல. उनके पास कोई सहारा नहीं। நிறைய தமிழ்நாட்டுல பார்க்கலாம். और बहुत सारे लोग तमिलनाडु में देख सकते हैं। சனிக்கிழமை और ஞாயிற்றுக்கிழமை और शनिवार और रविवार 2 நாளைக்கு டிவில ஒரு ப்ரோகிராம் வருது. और टीवी में एक प्रोग्राम आता है, தமிழ் பாஷையில ஹிந்தி பாஷைலாம் வருது. तमिल भाषा हिंदी भाषा सब में आता है, கரெக்டா 7 மணிக்கு बराबर 7 बजे। அவர் சொல்லுகிறார், ஜெபிக்கலாம் வாங்க அப்படிங்கிறார். और वो कहता है कि चलो प्रार्थना करें। அங்க ஊர்ல, तो कहां पर? गांव में। அங்க எல்லாம் கூடி ஜெபம் பண்ணுதாங்க. वहां पर लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना இங்க करते மற்ற हैं இடங்கள்ல ஆட்கள் டிவில பாத்துட்டே இருக்காங்க. और दूर जगह पे लोग टीवी में उसी बातों को देखते हैं। ஊர்ல பாஸ்டர் சொல்லுகிறார், वो गांव से एक पास्टर कहता है, பாம்பேல அங்க டிவி முன்னால உட்கார்ந்திருக்கியா? और क्या बॉम्बे में आप टीवी के सामने बैठे हैं? இல்ல அங்க எங்க நம்ம பக்கத்துல இருக்கிற அந்த குஜராத்ல நீ இருக்கியா? क्या पास में रहने वाले किसी गुजरात में तू है? எங்க இருந்தாலும் பரவாயில்ல, कोई भी कहीं पर भी क्यों ना रहे, நான் ஜெபம் பண்ணுகிறேன், मैं प्रार्थना करता हूँ நீ ஜெபம் பண்ணு. और तुम भी प्रार्थना करो। இயேசு இப்போ சுகமாக்குவார். यीशु अब तुम्हें चंगा करेगा। நிறைய பேருக்கு இப்படி அங்க சுகம் பண்ணுறாரு, இவங்களும் சுகம் பண்ணுறாங்க, சுகமாயிடுது. और वो वहां पर प्रार्थना करते हैं, लोग यहाँ पर प्रार्थना करते हैं, चंगाई हो जाती है உடனே அந்த நடந்துருது. और तुरंत वो चंगाई होती है। பிசாசு கூட இருந்தா ஓடிடுது. और शैतान भी रहता है तो भाग जाता है। படுத்திருந்த ஆளுங்க தனியா ஜெபம் பண்ணுதாங்க. पड़े हुए लोग, बिस्तर में रहने वाले लोग अकेले में प्रार्थना करते ப்ரோகிராம் हैं। பார்க்காங்க, वो टीवी में उस प्रोग्राम को देखते அந்த हैं, பாஸ்டர் அங்க ஜெபம் பண்ணுதாரு. वहां पर पास्टर जी उनके लिए प्रार्थना करते हैं। ஏசப்பா, அந்த யாரெல்லாம் டிவி பார்த்து ஜெபம் பண்ணுதாங்களோ அவங்கள சுகமாக்கிருங்க. हे यीशु, जो भी टीवी देख रहे हैं उन सबको आप चंगा कीजिए। உடனே நடந்துருது. तुरंत चंगा हो जाता है। அதை விட ஃபேமஸ் இயேசு கிறிஸ்துடைய வார்த்தை. उससे भी बढ़कर यीशु मसीह का शब्द है। நம்ம பலவீனப்படும் போது, हम जब कमजोर है, வியாதியா हम இருக்கும்போது जब बीमार हैं, பைபிள் எடுத்து வாசித்து நம்ம ஜெபம் பண்ணணும். बाइबल उठाकर पढ़कर हमें प्रार्थना करना ஏன்னா है। வசனத்துல புதிய ஏற்பாடுல பாத்தீங்கன்னா எல்லா வார்த்தையிலுமே தேவன் தன்னுடைய வல்லமையை और வைத்திருக்கிறார். सारे वचन में, सारे शब्द में प्रभु ने अपने सामर्थ को रखा है। யார் வாசித்தாலும் அது அவங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் தான். कोई भी क्यों ना पढ़े, उनके लिए वो आशीषित है। தமிழ்நாட்டுல எல்லாம் பார்த்தா ஏதாவது நம்முடைய கேத்தில நல்ல விளையாடல அப்படின்னா, और तमिलनाडु में किसी के खेत में अगर उपजाओ जो जो धान उगना चाहिए उतना नहीं उग रहा, அவங்க உடனே தண்ணி எடுப்பாங்க, वो थोड़ा सा पानी लेते हैं, பிரார்த்தனை பண்ணுவாங்க, उससे हाथ रख के प्रार्थना करते அவங்க हैं, கேத்தில கொண்டு இப்படி தெளிச்சிருவாங்க இயேசுவின் நாமத்தினால. यीशु के नाम से उस पानी को अपने खेतों में उड़ेल देते हैं பஸ் கேத்தி நல்லா விளையுது. और उनके खेत का जो उपजाऊ है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। எப்படி நடக்குது ये இது? कैसे हो रहा है? இயேசு சொன்னார், यीशु ने कहा, இயேசுவின் நாமத்துல நீ ஜெபம் பண்ணும்போது நடக்கும். यीशु के नाम से जब तुम प्रार्थना करोगे वो होगा। போரிங் போடும்போது ஜெபம் பண்ணுதாங்க, நல்ல தண்ணி வருது. बोरिंग डालने के टाइम पे प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छा पानी आ जाता है। இயேசு அந்த அற்புதத்தை ஜனங்களுக்கு वो செய்கிறார். अद्भुत कार्य यीशु करता है। ஒவ்வொரு நாளும் கர்த்தர் இந்த அற்புதத்தை செய்கிறார். हर एक दिन, हर एक के जीवन में ऐसा कार्य करता இந்த है। அதிகாரத்துல இயேசு சொல்றார், நல்ல ஒரு விசுவாசம் அந்த ஆள்கிட்ட இருக்கு. और इस जगह पर लिखा है कि अच्छा विश्वास इस व्यक्ति के पास है। தினமும் சர்ச்சுக்கு போகிறவனுக்கு கூட இந்த விசுவாசம் இல்ல. हर दिन कलीसिया में जाने वाले लोगों के ऊपर भी इस प्रकार का विश्वास இந்த नहीं है। அதிகாரி எவ்வளவு பயங்கர விசுவாசி. ये अधिकारी कितना अधिक विश्वास करता है। இயேசு சொன்னா நடந்துரும் அப்படின்னு நம்பினார். यीशु कहेगा तो जरूर होगा करके भरोसा करता है। கர்த்தருடைய விசுவாசத்தை ஆசீர்வதித்தார். प्रभु ने उसके विश्वास को बढ़ाया, அவன் உடனே அந்த வேலைக்காரன் சுகமாயிட்டான். तुरंत वो नौकर चंगा हो गया। இப்போ இயேசுவை பற்றி எல்லா பக்கமும் ஒரு
பிரசங்கம் நடக்கு. अब यीशु के बारे में बहुत ज्यादा प्रचार होना शुरू இப்போ हुआ அப்படியே அவர் நடந்து நடந்து ஒரு ஊருக்கு போறாரு. और वो वैसे ही चल चल कर दूसरे गांव चला गया ஆனா அங்க ஊருக்கு போகும்போது அங்க நிறைய பேர் இயேசு பற்றி தெரியாது. और वो गांव में जाने के समय पर बहुत लोग यीशु के बारे में नहीं जानते थे தெரிஞ்சிருந்தா எல்லா ஆட்களும் வந்து இயேசு கிறிஸ்துவை வந்து ஐயா எங்க வீட்டுக்கு வாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. और वैसे पता होता तो सारे लोग आके कहते यीशु हमारे घर पे आ ஆனா जाइए இப்ப அந்த கிராமத்துக்கு இயேசு போகும்போது யாருக்குமே இவர் அற்புதம் செய்வாரு, இவர் சுகமாக்குவாரு அப்படின்னு யாருக்கும் தெரியாது. और यीशु वहां जाने के समय पर यीशु अद्भुत करेगा, चंगा करेगा, इसके बारे में कोई नहीं जानता ஆனா था அந்த ஊர்ல ஒரு வாலிப பையன் செத்து போயிட்டான். और उस गांव में एक जवान लड़का मर गया था அவனுக்கு அப்பா இல்ல, उसका कोई पिता नहीं, அம்மா மட்டும் தான் இருக்கு. केवल उसकी माता है ஆனா அம்மா நினைக்காங்க நம்ம பையன் படிச்சு ஸ்கூலுக்கு போய் நல்லா மார்க் எடுத்து நல்லா வேலை பார்த்து நமக்கு சப்போர்ட் கொடுப்பான். और उसकी माँ का विचार है कि मेरा बेटा अच्छा पढ़ लिखेगा और अच्छा काम पर जाएगा और मेरा देखभाल करेगा। நல்ல பெரிய பையன் 20 வயசுக்கு மேல, करीब 20 साल के उम्र के जवान बच्चा है ஆனா செத்து போயிட்டான். लेकिन मर गया ஆனா யாரும் சொல்லல இயேசு அந்த ஊர்ல இருக்கிறாரு. और किसी ने ऐसा नहीं कहा कि यीशु उस गांव में है, அங்க தூக்கிட்டு போவோம், वहां उठाकर जाएंगे இல்ல அவரை கூட்டிட்டு வருவோம் या फिर उसे यहाँ पर ले आएंगे, அப்படின்னு சொல்லல. ऐसा नहीं कहा காரணம் யாருக்கும் தெரியாது. क्योंकि किसी को यीशु के बारे में नहीं पता। சரி இந்த ஆளு செத்து போச்சு, और तुरंत ये व्यक्ति मर गया, சரி நம்ம கபர்ஸ்தான்ல கொண்டு दफन பண்ணுவோம் हम उठाकर ले जाएंगे कब्रिस्तान में दफन அப்படின்னு करेंगे, சொல்லி தூக்கிட்டு வராங்க. ऐसे उसको लेकर दफन करने के लिए ले ஆனா गए அந்த ஊர்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த பெண்ணுக்கு யாரும் சப்போர்ட் கிடையாது. और वो स्त्री अकेली थी, उसका कोई मदद करने वाला नहीं அவளுக்கு था, அந்த பையன் மேல தான் பரவசா. उसको उसके बेटे के ऊपर ही भरोसा था, அதனால இருதயம் ரொம்ப உடைஞ்சு போச்சு. वो बहुत दिल से टूटी हुई थी, அவ அழுதா. वो रोने लगी ஆனா அவ அழுத பார்த்த உடனே கிராமத்து ஜனங்களே அழுதாங்க. और जब वो रोई तो उसके नगर के सारे लोग उसके साथ बैठकर रोने लगे, நிறைய பேர். बहुत सारे लोग। அது அப்படியே இனி என்ன செய்யலாம், ஊருக்குள்ள வைக்க முடியாது, आप गांव के अंदर तो नहीं रख सकते, அது செத்து போயிடுச்சுல. वो मर गया है, கபர்ஸ்தான் தூக்கிட்டு போறாங்க. अब उससे उस अर्थ को उठाकर लेकर चले அப்படியே गए ஊர்ல இருந்து தூக்கி ரோடுக்கு போயாச்சு. और चलकर उस गांव से बाहर नगर में लेकर नगर के बाहर ले गए ஆனா ஜீசஸ் அங்க இருந்து வராரு. और उस नगर के बाहर से यीशु नगर के अंदर आ रहा है அங்கேயும் ஒரு பெரிய கூட்டம். और उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा झुंड है, அவங்களுக்கு இயேசு பற்றி தெரியும். वो लोग यीशु के बारे में जानते थे, அவங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம், वो खुशी से उसके पीछे आ रहे थे, இயேசு இந்த கிராமத்துக்கு போறாரு. यीशु खुशी से इस गांव के अंदर प्रवेश कर रहा ஊர்ல था। யாருக்கும் சுகம் இல்லைன்னா இயேசு சுகம் கொடுப்பாரு. इस गांव में यदि कोई बीमार है तो उसको प्रभु चंगा करेगा, வாங்க வாங்க நம்ம பார்க்கலாம். चलो हम देखने जाते हैं। ஒரே பாட்டு படிச்சிட்டு ஓசன்னா ஹல்லேலூயான்னு படிச்சிட்டு வராங்க. और ऐसे गीत गाते हुए एक झुंड बाहर से उस गांव के अंदर आ रहा ஆனா है ஊரு உள்ள இருந்து இன்னொரு ஜுண்டு அழுதுகிட்டு போகுது. और गांव के अंदर से एक झुंड रोता हुआ अब गांव के बाहर आ रहा है। समझो ஒரு இயேசு அங்க மஜவாடல இருந்து வராரு. यीशु ऐसे माजवाड़ा से अगर आ रहा है, ஒரு பெரிய கூட்டம், एक बहुत बड़ा झुंड ஒரே ஓசன்னா ஹல்லேலூயா, होसाना हालेलुया गीत गा के ஒரே जा रहा है சந்தோஷம். और बहुत खुशी के ஓ साथ இயேசு போறாரு, ஏதாவது நடக்கும். यीशु जा रहा है, कुछ ना कुछ जरूर होगा, அந்த ஒரு அந்த அந்த பரவசத்துல வராங்க. और उस खुशी के साथ वहां से आ रहे थे। சுபாஷ்ல ஒரு ஆள் இறந்து போச்சு. लेकिन सुभाष नगर में कोई व्यक्ति मर गया, அவங்க அழுதுகிட்டு வெளியே போறாங்க. वो लोग रोक कर गांव के बाहर जा रहे हैं, அங்க சந்தோஷமா வராங்க, वो खुशी से आ रहे हैं, இவங்க அழுதுட்டு போறாங்க. ये लोग दुख होकर जा रहे हैं। இயேசு ரெண்டே பார்த்தாரு. यीशु ने वहां पर देखा அந்த சித்தர் பயங்கரமா அழுது. और उसकी माँ बहुत रो रही है, பைபிள் சொல்லுது बाइबल में लिखा இந்த है, ஜனங்கள் எல்லாம் அவ அழுத பார்த்து அழுதாங்க. और ये सारे लोग उसके माँ रोने के कारण वो लोग भी रोने लगे। ஆனா இயேசு அது மட்டும் பார்க்கல, அவருடைய இருதயத்தை பார்க்கிறார். यीशु ने केवल इसे नहीं देखा, उसके मन को देखा। அதுல எழுதி இருக்கிறது, उस पर लिखा है, அவர் அந்த ஊருக்குள்ள பிரவேசித்த போது और जब उस गांव के अंदर वो प्रवेश कर रहा அந்த था, மகளுக்கு எது சப்போர்ட் இல்ல அப்படின்னு கர்த்தர் பார்த்தார். और जब प्रभु ने देखा कि उसका कोई उद्धार करता नहीं है, யாரும் அவளுக்கு உதவி இல்ல. उसको कोई मददगार करने वाला नहीं இயேசு அவளை है, பார்த்தார். यीशु ने उसे देखा அப்படியே ரொம்ப அவருக்கு ஒரு மாதிரி அழ வந்துட்டு, और यीशु उसको देखकर उसको भी रोना आया। உடனே அந்த கபர்ஸ்தானுக்கு போறவங்கள அப்படியே நிக்க வச்சிட்டாரு. और तुरंत वो कब्रिस्तान में जाने वाले लोगों को रुकाया। ஜீசஸ் நல்லா வளர்ந்த ஆளு, यीशु बहुत ऊंचा व्यक्ति है அவர் அவங்க எல்லாம் தூக்கி வச்சிருக்காங்க. और वो उसके कंधे पे रखे हैं, இவங்க நேரம் ஜீசஸ் அந்த பாடையை அந்த சுமந்துட்டு போறதே தொட்டுட்டாரு. और यीशु ने उसके अर्थ को छू लिया। ஆனா யாரும் தூக்கிட்டு போகும்போது இடையில நிப்பாட்ட மாட்டாங்க. कोई ऐसे उठा के जाने के समय पर कभी कोई रोकता नहीं है, போலீஸ்காரங்களே வண்டி எல்லாம் விலைக்கு விட்டுருவாங்க. और पुलिस वाले भी गाड़ी को हटा देते हैं ताकि वो अर्थी को उठाकर ले चले, கார்காரங்களும் விலகிடுவாங்க. और कार के जाने वाले भी अलग हो जाते हैं செத்து போன ஆளு போகுது, क्योंकि वो मरे हुए व्यक्ति को लेके जा रहे யாரோ हैं।
பார்க்கவங்க எல்லாம் இப்படிம்பாங்க. और जो भी कोई देखता है तो उसको देखकर उसको नमन करते ஆனா हैं, இயேசு அந்த ஆளை அப்படியே நிப்பாட்டிட்டாரு. लेकिन यीशु ने उस अर्थी को वहां पर रोका அவர் பார்த்தாரு அவங்க அம்மா ஒத்தையில இருக்கு. और उसने देखा उसकी माँ अकेली है ஐயோ அவங்க இருதயத்துல பயங்கர துக்கம். और उसके मन में बहुत दुख हुआ। உடனே அங்க தொட்ட உடனே கீழே வச்சுட்டாங்க. और यीशु ने जैसे ही उसे छुआ तो उन्होंने उस अर्थ को नीचे रख அந்த दिया செத்த பாடி இருக்கு. और वो उस अर्थ को वहां पर அந்த वो பையன் लड़का செத்து போய் அப்படி இருக்கான். वो लड़का मरा हुआ वहां पर पड़ा है இயேசு அதை பார்த்தாரு. और यीशु ने उसे देखा அப்படியே நின்னு அந்த செத்து போன ஆளை பார்த்து பேசுறாரு. और यीशु उस मरे हुए उस जवान को देखकर बातें ஓ किया ஜவான் எழுந்துரு அப்படின்னாரு. और हे जवान उठ जा करके कहा அவன் எழுந்துட்டான். और वो तुरंत उठ गया। எப்படி எப்படி நடக்கும்? ये कैसे होगा? கர்த்தர் அவர் நல்லவர். और वो महान परमेश्वर भला है அவருடைய வார்த்தையில ஜீவன் और இருக்கிறது. उसके वचन में जीवन है। செத்து போன ஆளு கூட அந்த சத்தத்தை கேட்டு எழும்பிட்டான். मरा हुआ शरीर भी उसकी आवाज को सुनकर उठ जाता உடனே है எழும்பிட்டான். और वो तुरंत उठ गया எல்லா ஆட்களுக்கும் ஒரே சந்தோஷம். और वो सारे लोगों को बहुत खुशी की அவங்க बात है। அம்மாவுக்கு ஒரே சந்தோஷம். उसकी माँ को बहुत खुशी। இவங்களுக்கு இயேசு பற்றியே தெரியாது. ये लोग यीशु के बारे में जानते ही नहीं இப்ப थे। என்ன நடந்திருக்கும் அதுல? अब क्या हुआ होगा? இந்த கிராமத்துல உள்ள எல்லாருமே ஏசப்பா எங்க கிராமத்துக்கு வாங்க. और वो गांव के सारे लोगों ने कहा यीशु हमारे गांव में आ जाइए, வரணும், இங்க கண்டிப்பா வரணும். आप जरूर हमारे गांव में இங்க आइए। நிறைய சோகம் இல்லாம இருக்காங்க. बहुत सारे लोग बीमार हैं। எல்லா பிரச்சனைக்கும் இயேசு கிறிஸ்து அவங்களுக்கு உதவி செய்யும். सारे समस्याओं का हल प्रभु ने उन्हें दिया அந்த है। வாலிபன் எழுந்தான். वो जवान उठ गया அவன் பேச தொடங்கினான். और वो बातें करने लगा உடனே அவனுடைய தாயிடத்துல அவர் ஒப்பு கொடுத்தார். और उसके माता के पास उन्होंने उसके अर्पण दे दिया। 16வது வசனம் வாசிக்கலாம். 16 वचन पढ़ेंगे। इसके बाद इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यद्वक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। எல்லாருக்கும் ஒரு சந்தோஷம். सारे लोगों को खुशी। ஓ இந்த இயேசு பரிசுத்தவான். ये यीशु एक पवित्र व्यक्ति है, இவர் தீர்க்கதரிசி. ये भविष्यद्वक्ता है, ஓ நம்மள பார்க்க வந்திருக்கிறார். ये हमें देखने के लिए आया है। எல்லாரும் பிரைஸ் லார்ட் ஹalleluya सब அப்படிங்க. लोगों ने हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करने लगे। கிராமமே ஒரு பெரிய वो சந்தோஷம். पूरा गांव में बहुत बड़ी खुशी आ गई। ஆனா இந்த புதிய ஏற்பாட்டு காலத்துல इस नए नियम के समय पर ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், यीशु कहता है ஒரு வீட்டுக்குள்ள एक घर के अंदर தனி ஆளா இல்ல ரெண்டு பேரா अकेला व्यक्ति हो या दो व्यक्ति हो, அப்படியே முழங்கால் போட்டு ஜெபம் பண்ணுங்க. घुटने में आकर प्रार्थना कीजिए। இயேசு அந்த வீட்டுக்குள்ள கண்டிப்பா வருவார். जरूर यीशु उस घर के अंदर प्रवेश பைபிள் करेगा। சொல்லுது ரெண்டு பேர் மூணு பேர் இருந்தா உங்க மத்தியில நான் இருப்பேன். 2 या 3 व्यक्ति होगा तो वहां पर जरूर मैं रहूंगा करके कहा। இயேசு அப்படி நடந்தெல்லாம் வரல. यीशु ऐसे चलकर नहीं आता, பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமையினால அவர் வருகிறார். पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आता है அவருடைய பிரசன்னம் அங்க வருது. और उसकी प्रशंसा उनके साथ நம்ம आता है விசுவாசத்தோட செய்கிற ஜெபத்தை அவர் கேட்டு நமக்கு அற்புதம் செய்கிறார். और वो विश्वास के साथ चलने वालों के लिए वैसा कार्य करता है। கண்டிப்பா அந்த காரியத்தை கர்த்தர் வாக்கிய பண்ணுகிறார். जरूर ऐसे कार्य को प्रभु सफल करता है। நம்மளும் என்ன செய்யணும்? हम भी क्या करना है? அவருடைய வார்த்தையை நம்பி उसके वचन को विश्वास करके ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துல சாயங்காலம் அல்ல காலையில एक थोड़े से समय सुबह में या शाम में, நல்லா ஆண்டவரே நாங்க ஜெபம் பண்ணுதோம், हे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, எங்க வீட்டுக்கு வாங்க, मेरे घर पे आप आइए। என்ன பிரச்சனைனாலும் நான் சொல்லணும். मेरा जो भी समस्या है हमें उस समय पे प्रार्थना में कहना है। இயேசு சூழ்நிலையை மாற்றுவார். यीशु सारी परिस्थिति को बदल देगा। கர்த்தர் கண்டிப்பா நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருந்த குடும்பத்தில் உள்ள எல்லா பிரச்சனைக்கும் ஒரு முடிவை அவர் கர்த்தர் जरूर हमारे परिवार का हर समस्या का हल वो प्रभु देता है, என்றால் அவருடைய வசனம் நம்ம கையில இருக்குது. क्योंकि उसका वचन हमारे हाथों में है। அன்றைக்கு இயேசு அப்படியே எல்லா தெருவிலே வந்தார். और वैसे ही उस समय पे यीशु हर गली गली में जाने लगा है। இன்னைக்கு அவருடைய வசனத்தை எழுதி தந்திருக்கிறார். लेकिन आज उसने अपने वचन को लिखकर हमें दे दिया। வசனத்தை வாசித்து நிச்சயம் பண்ணு, நான் உனக்கு அற்புதம் ये वचन को देकर पढ़ाई कर कर ध्यान करो, मैं तुम्हें अब अद्भुत कार्य दिखाऊंगा। நான் ஜெபம் பண்ணும்போது நம்முடைய ஜெபத்தை கர்த்தர் கேட்பார். हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना को प्रभु सुनता है। நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா சில இடத்துல ஏதாவது பூடி ஏதாவது இருக்கு, और किसी के हाथ में कोई फोड़ी है या कोई दुख रहा होगा, எண்ணெய் போட்டு ஜெபம் वो பண்ணுறாங்க. केवल तेल लगा के प्रार्थना करते हैं। கர்த்தர் உங்களுக்கு சுகம் கொடுப்பார். प्रभु उन्हें चंगाई करता है, கண்டிப்பா அவர் செய்வார். जरूर वो चंगा करेगा, காரணம் கர்த்தருடைய வசனம் சொல்லுகிறது, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है ஒரு வார்த்தை சொன்னாலே
சுகமாயிரும். एक शब्द कहेंगे तो वो चंगा होगा, அந்த சத்தத்தை நான் படிச்சுட்டு நான் சொல்லணும். और वो बातों को मैं सुनकर वो वैसे ही हमें उससे कहना है। சொல்லணும், ஏசப்பா இந்த வீட்டுக்குள்ள சமாதானம் வேணும். हे प्रभु, इस घर के अंदर समाधान चाहिए, என்னுடைய பிள்ளைகளை நீர் ஆசீர்வதிக்கணும். हमारे घर के अंदर बच्चों को आशीष कीजिए। சிஸ்டர் சொன்னாங்க அவங்களுடைய புருஷன் ஆட்டோ ஓட்டினாலும் ரொம்ப குடிக்கிறாரு. और वो सिस्टर ने कहा कि उनका पति ऑटो चलाते हैं लेकिन दारू बहुत पीते हैं। அவங்கள்ட்ட ஒன்றும் சொல்லக்கூடாது. उनसे कुछ नहीं कहना है। அவங்க வீட்டை விட்டு வெளியே போய் நம்ம ஜெபம் பண்ணணும். और वो घर से बाहर काम के लिए गए तो हमें घर पे प्रभु के पास प्रार्थना करना है। ஆண்டவரே என் புருஷன் குடிச்சிட்டு வராரு, हे प्रभु, मेरा पति दारू पी कर आता है, அவனுடைய மனம் திரும்பணும், उसका मन फिरना இந்த चाहिए, சூழ்நிலையை நீர் वो மாற்றணும். परिस्थिति को आप बदल दीजिए। நம்ம ஜெபம் பண்ணும்போது ஆவியானவருடைய வல்லமை ஒரு மனுஷனை जब மாற்றும். हम प्रार्थना करते हैं वो सामर्थ्य परमेश्वर वो मन को बदलता है। ஏன்னா தேவன் தன்னுடைய வசனத்தை நான் சொல்லி அந்த வசனம் அங்க தேவன் அனுப்புகிறார். और मैं जो कहता हूँ उस बातों को सुनकर प्रभु शब्द को वहां भेजता है। கண்டிப்பா இன்றைக்கும் அந்த ஆண்டவர் நமக்கு அற்புதம் செய்வார். जरूर वही परमेश्वर आज हमारे लिए भी अद्भुत करेगा। பைபிள் சொல்லுகிறது, உங்களில் யாராவது வியாதிப்பட்டால் बाइबल कहती है यदि तुम में से कोई बीमार है, எண்ணெய் எடுத்து ஜெபம் பண்ணி போடு, நான் சுகமாக்குவேன். तेल लेकर प्रार्थना करो, मैं तुम्हें चंगा करूंगा। கண்டிப்பா கர்த்தர் சுகம் கொடுப்பார். जरूर प्रभु चंगाई करता है। வெளியில நம்ம எல்லாரும் ஜெபம் பண்ணுவோம். हम सब प्रार्थना करेंगे, ஜெபம் பண்ணுவோம். हम सब आंखों को बंद करके प्रार्थना करें, சகோதரருடைய சரீரத்தில் இருக்கிற பலவீனம் மாறும்படி. और जो प्रभु के जो इस बहन की शरीर के कमजोर दूर हो जाने के लिए ஜெபம் பண்ணலாம். हम प्रार्थना करें। எல்லாரும் ஆயுதம். हम सब अपने मुंह खोलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ஆண்டவர் சுகத்தை கொடுக்கணும். प्रभु चंगा करना चाहिए, வீட்டுக்குள்ள ஒரு சமாதானத்தை घर கொடுக்கணும். के अंदर समाधान होनी चाहिए, எல்லா பிள்ளைகளுமே இருட்டுல இருந்து வெளிச்சத்துக்கு வரணும். घर के अंदर के सारे लोग अंधकार से उजियाले में आना चाहिए। அந்த எஜமான் சொன்னது போல, और जैसा उससे सूबेदार मालिक ने कहा, ஏசப்பா ஒரு வார்த்தை சொல்லும், हे प्रभु तू एक शब्द कह दे, எங்க வீடு வெளிச்சமாய் மாறி मेरा घर के अंदर उजियाला होगा, வரட்டு ஏசப்பா. अंधकार से निकल जाए। நீ प्रभु எங்க வீட்டுக்குள்ள வருவதுக்கு தேவையில்லை, आप हमारे घर के अंदर भी आने की आवश्यकता ஒரு नहीं, வார்த்தை சொன்னால் போதும். आपका एक शब्द काफी है। இயேசுவின் ரத்தத்தினால அது நடக்கிறது. यीशु के लहू से वो होगा। ஜெபம் பண்ணுவோம், எல்லாரும் ஜெபம் हम सब प्रार्थना करेंगे। நம்ம எல்லாரும் धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं। धन्यवाद यीशु, चंगा करने वाले प्रभु धन्यवाद, अद्भुत करने वाले प्रभु धन्यवाद, छुटकारा देने वाले प्रभु धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आश्चर्य कर्म करने वाले प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। स्तुति 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 करते हैं, स्तुति करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। शाम के समय में आपके समूह में आपने इकट्ठा होने के लिए जो मौका दिया, आपको स्तुति और आदर और महिमा करते हैं। जैसे हमने वचन में सुना है प्रभु, तेरा शब्द, एक शब्द काफी है, हमारे घर की सारी समस्या दूर हो जाएगी। तेरा एक शब्द काफी है प्रभु, बीमारियां चंगाई हो जाती है। तेरा एक शब्द काफी है, श्राप निकल जाते हैं, हमारे पाप दूर हो जाते हैं। धन्यवाद कहते हैं तेरे नाम के लिए यीशु, आपके नाम के लिए धन्यवाद करते हैं, वो सामर्थ्यवान नाम के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे घर के अंदर प्रभु तेरा नाम हमेशा उजियाला रहने दे, हर एक अंधकार को घर के अंदर से निकाल दे, हर एक शैतान की चालाकी घर के अंदर से निकाल दे प्रभु। विशेष करके प्रार्थना करते हैं उस बहन के लिए प्रभु, उनके परिवार में जो भी समस्या है, जो भी परेशानियां हैं, यीशु के नाम से प्रभु अभी उस घर के अंदर से सारे कार्य, बुरे कार्य को दूर कर दे प्रभु, हर एक अशुद्धता को दूर कर दे, और उस घर को तू पवित्र कर, तू उस घर के अंदर प्रवेश कर और उस घर को चंगाई से रख प्रभु। हर एक व्यक्ति के अंदर प्रभु आपका स्वभाव बढ़ने के लिए, आपका सामर्थ्य बढ़ने के लिए आप मदद कीजिएगा। धन्यवाद कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं प्रभु। इस समय पे आए हुए हर एक के जीवन में, हर एक परिवार में, हर एक के घर के अंदर आपकी महिमा, आपकी प्रसन्नता रहने दे, हर एक घर के अंदर शांति और समाधान रहने दे प्रभु। हर एक बातों में प्रभु आपका आशीष रहने दे। आप अभी तक हमें संभाले हैं, आगे भी आप संभालने के लिए योग्य है प्रभु। हम आपके ऊपर पूरा भरोसा करते हैं। ये छोटी सी दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं। ना तो बल से